Okay students, today we'll be starting with inequalities in triangle. Now first of all we have to understand what is inequality. Inequality means none of the side is equal. In simple word we can say none of the sides are equal. So it means in scalene triangle this property will come. Whenever any side is not equal then property will come. Okay, so let us see according to the theorem. Now first theorem is what? If two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer side is larger. Okay, this is the first theorem. Only the theorem is important, proof is not that important. Now it says what? This is a triangle. If you observe A, B, C, in triangle ABC, AC is more than AB. AC क्या ज़्यादा है AB से. The theorem is what? If the side is longer, the angle will be also longer. Okay. If two sides of a triangle are unequal, two sides are unequal, then angle opposite to the longer side is larger. There are two theorems. If the side is more, the opposite angle is also more. If this side is more, so opposite angle is angle B. So if AC is more, angle B will be also more. And AB is more, opposite is which? Angle C. The angle C will be also less. So AC क्या होगा? AC अगर ज़्यादा है तो इसका सामने वाला एंगल B भी ज़्यादा होगा. अगर AB कम है, less than AB कम है, तो AB कम है तो एंगल C भी कम होगा. Similarly, conversely also it is true, which is the next theorem, 7.7. If you check, now theorem again saying again same way, A, B, C. या फिर और इजी रखने के लिए थोड़ा ये ऐसे करते हैं. इफ दिस वे आई ऑब्जर्व ए बी सी. इफ सी इज मोर, इफ एंगल सी इज मोर देन एंगल बी, इफ एंगल इज मोर ऑपोजिट साइड इज ऑल्सो मोर. अगर एंगल ज्यादा होगा उसके सामने वाला साइड भी ज्यादा होगा. एंगल सी इज मोर तो एंगल ए बी विल साइड ए बी विल बी ऑल्सो मोर. एंगल बी के सामने कौन है? ए सी. So this is the property of the angle of these two theorems. Very easy theorem. First theorem is what? If side is more, opposite angle is more. अगर ये ज़्यादा है तो उसके opposite side ज़्यादा होगा. और ये less है, इसके opposite side angle less होगा. Similarly converse, if angle C ज़्यादा है, उसके सामने वाला side ज़्यादा होगा, AB भी ज़्यादा होगा. और अगर B कम है तो उसका सामने वाला AC बंद होगा. सिंपल है, सिर्फ ऑपोजिट साइड को सेम चीज प्रॉपर्टी मिल जाती है. एंगल C अगर ज्यादा है तो AB भी ज्यादा है. अगर AC ज्यादा है तो उसके सामने एंगल B भी ज्यादा है. वेरी सिंपल प्रॉपर्टी. ओके, एंड द लास्ट थ्योरम इज द सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. दैट इज वेरी ऑब्वियस. ये तो लोअर क्लास में सीखे थे. कोई भी ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज मोर देन थर्ड साइड. दैट इज ऑब्वियस. इन दोनों का प्लस ऑलवेज ज्यादा होगा तीसरे से. दो साइड का प्लस हमेशा तीसरे से ज्यादा ही होगा. वैसे ही BC प्लस AC भी AB से ज्यादा होगा और AC प्लस AB भी BC से ज्यादा होगा. दैट इज द प्रॉपर्टी. सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज मोर देन थर्ड साइड. सम ऑफ दिस टू, अगर फॉर एग्जांपल ये 5 है, ये 6 है और ये लेट्स से 7 है, इन दोनों का प्लस ऑब्वियसली ज्यादा होगा 7 से. 5 प्लस 6 11 ज्यादा है. 6 प्लस 7 12 ज्यादा है 5 से. 7 प्लस 5 12 ज्यादा है 6 से. हर बार ऑलवेज इट विल बी थ्रू. सम ऑफ टू साइड विल बी ऑलवेज मोर देन थर्ड साइड. दैट इज द वेरी बेसिक प्रॉपर्टी. सो बाय यूजिंग दिस थ्री प्रॉपर्टीज वी विल बी लर्निंग अबाउट, we will be doing the exercise. Now let us start the first question. It says show that in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side. 7.4 first question. It says given first, I will draw a diagram first. There is a right angle triangle A, B, C. It says given angle B is 90 degree. To prove we have to prove hypotenuse is longest. अब इसमें hypotenuse क्या होगा? AC. So AC is longest or largest, whatever you say. This we have to prove. AC is largest, we have to prove. Now proof. Very easy proof. Now if we say ये triangle में, can I say angle B? First of all, angle B is 90 degree. Can I say angle B is more than angle A?
एंड एंगल बी इज मोर देन एंगल सी। एंगल बी अगर अकेले 90 है, तीनों का प्लस कितना होता है, तीनों को अगर प्लस करो कितना होता है 180, तीनों का एडिशन 180 है। अकेले ये बी 90 है, अकेले ये 90 दोनों से बड़ा ही होगा क्योंकि तीनों मिला के 180 होता है। कितना बचा, अगर 90 इसने अकेले ले लिया तो सिर्फ 90 बचा, मतलब ए और सी मिलके 90 है। सो ऑब्वियसली एंगल बी क्या होगा, दोनों से बड़ा होगा। एंगल बी विल बी मोर देन एंगल ए एंड एंगल बी विल बी मोर देन एंगल सी। वेरी बेसिक प्रॉपर्टी, राइट। इफ आई से एंगल बी इज 90 डिग्री, ऑब्वियसली अगर ये 90 है, तीनों मिला के 180 है। अब इसने 90 है, इन दोनों मिलके 190 लेंगे, राइट। तो एंगल बी विल बी मोर देन एंगल ए एंड एंगल विल बी मोर देन एंगल सी, दोनों से बड़ा होगा। अब एंगल बी के सामने कौन सा साइड है, एंगल बी के सामने ए सी, एंगल मोर देन सॉरी एंगल ए के सामने कौन सा साइड है, एंगल ए के सामने बी सी। ये थ्योरम प्रॉपर्टी यूज किया, इफ द एंगल इज मोर ऑपोजिट साइड इज मोर। अभी जस्ट थ्योरम सीखे, राइट। एंड ए के सामने, एंड सिमिलरली एंगल बी के सामने कौन सा साइड है, ए बी के सामने ए सी, और सी के सामने कौन सा एंगल साइड है, सी के सामने ए बी। सो हियर यू विल राइट द थ्योरम, दैट स्टेटमेंट यू विल राइट, आई एम नॉट राइटिंग बट यू लिसन, if angle is more opposite side will be also more, the theorem I am using. So with the help of the theorem only we are doing this proof. Okay, so if you conclude, क्या आ रहा है आंसर, AC BC से भी ज्यादा है, AC AB से भी ज्यादा है, therefore AC is longest, that we have proved that hypotenuse is longest। ये पूछा था ना, that hypotenuse is longest or not। This was the first sum. So let us discuss second question. Enough space is there. So if I discuss second question, the diagram is given in question. A, B, P, C, Q दिया हुआ है। ओके, गिवन क्या है, PBC is less than angle QCB, and to prove AC is more than AB. Okay, this is given, this is asked. PBC is less than QCB and AC is more than AB, it is asked. Now first of all, with the help of this, okay, first we will see this. Let's say this is angle 1, इसको angle 2, इसको angle 3, इसको angle 4. Okay, now proof. Can I say इन दोनों का प्लस 180 होगा, straight line means 180 degree, sum of this two angle is 180 degree. Again this is a straight line, the sum of this two angle is 180 degree. So angle 1 plus 2 is equal to 180. Similarly 3 plus 4 also 180 degree. 3 plus 4 is also 180 degree. Reason, linear pair property, linear pair 1 plus 2 180 degree, 3 plus 180। अगर 1 plus 2 भी 180 डिग्री है, 3 plus 4 भी 180 डिग्री है, कैन आई से दे विल बी ऑल्सो इक्वल। इफ बोथ आर एडिंग 180 डिग्री, दिस ऑल्सो इज 180 डिग्री, सो दे विल बी इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, दे आर इक्वल टू वन अनदर। यूक्लिड्स पोस्टुलेट, so angle 1 plus 2 is equal to angle 3 plus 4. Okay, now this is, let's say, equation 1. Now what is given, PBC is less than QCB. PBC is less than QCB. What is PBC in this figure? PBC, which angle? Angle 2. PBC means angle 2 less than QCB is which angle? QCB, angle 4. So angle 2 is less than angle 4. Now we will put this value over here. Angle 1 plus angle 2 is equal to angle 3 plus angle 4. Now what we know? Angle 2 क्या है? Less. It is less. And angle 4 is what? Angle 4 is what? It is more. पर ये दोनों का एडिशन और ये दोनों का एडिशन सेम है. So can I say if this is less, this will be obviously more, and this is more, this will be obviously less. तो ये दोनों का प्लस इक्वल आ रहा होगा. If this is less, this is more, obviously इसके बाजू वाला लेस होगा और इसके बाजू वाला मोर होगा. Can I say by this angle 1 is more than angle 3? Angle 1 is more than angle 3, right? So we got angle 1 is more than angle 3. Angle 1 मतलब क्या? ये angle 1 के सामने कौन सा साइड है? कौन सा साइड है? Angle 1 के सामने AC,
और एंगल 3 के सामने कौन सा साइड है? एंगल 3 के सामने ए बी. And in bracket you will write the reason. If the angle is more, the opposite side is also more. The theorem you will write. Okay. Now let's move to the next question. Question number 3. See, simple theorem use करना है. Now one more time, diagram is given. So let us draw the diagram first. Okay, everything is given in question. Now it says angle B is less than angle A and angle C is less than angle D. To prove AD is less than BC. Okay, अब ये भी वैसे ही एकदम इजी है, राइट? चेक करते हैं प्रूफ कैसे करेंगे. क्या दिया हुआ है? एंगल B is less than एंगल A. एंगल B के सामने कौन सा साइड है? एंगल B की अगर ये ट्राइंगल लेता हूँ, एंगल बी के सामने कौन सा साइड है? एंगल बी के सामने OA. और एंगल ए के सामने कौन सा साइड है? एंगल ए के सामने OB. इक्वेशन 1. सिमिलरली ये लिखेंगे एंगल C इज लेस देन एंगल D. एंगल C के सामने कौन सा है? एंगल C के सामने OD. और एंगल D के सामने कौन है? OC. So here you write the reason. If the angle is less, opposite side is also less. Same property, that theorem only you have to write over here. Okay. Now if I add 1 and 2, 1 plus 2 अगर करता हूँ क्या आएगा? OA plus OD less than OB plus OC. OA plus OD क्या होगा? चेक करो. OA plus OD क्या होगा? If I mix OA and OD, what you will get? AD. इन OB प्लस OC क्या होगा? चेक करो. OB प्लस OC पूरा BC. दैट इज व्हाट द आंसर. यही चाहिए था ना. तो सिंपल है, फिर से वही चीज़ किया, कुछ नया नहीं, वही प्रॉपर्टी यूज करी, डायरेक्ट अपने आप आंसर आ गया, राइट. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट and little different, so understand it properly. In this question, first of all, understand what is given in the question. AB and CD are the smallest and the longest side of a quadrilateral ABCD. Show that angle A is less than angle C. So first I will draw a diagram. A, B, C, D. Given क्या है? AB is smallest and CD is largest. These two things are given. AB is smallest, CD is largest. To prove angle A is more than angle C and angle B is more than angle D. ये दो चीज पूछी है. Okay. Now first, one sum at a time. There are two parts, first part and second part. So let's do part 1. Okay, or we can say proof. Okay, in proof for AC, we have to do construction. So we have to write here construction, join AC and BD. First part में AC join करेंगे. Join AC. If I, because A और C चाहिए ना, तो AC को join कर दूँ. Okay, if I join AC, what I will get? I have two triangles. Triangle ABC and फिर ABC कर दे. दो ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल है, राइट. अब ABC के लिए बात करेंगे. ABC में क्या मालूम है मुझे? ABC ट्राइंगल में कुछ बताया है हमें? क्या बताया? AB स्मॉलेस्ट. AB छोटा है. We know that AB is smallest. See, if you understand the first part, you will automatically understand the second part. ट्राइंगल ABC लिया मैंने, क्यों? क्योंकि AC चाहिए. AC चाहिए, AC को ज्वाइन किया, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल. पहला ये ट्राइंगल लिया ABC. ABC में क्या मालूम था? AB छोटा है. कितना समझ में आया? AB अगर छोटा है, नाउ लेट अस गिव द नेम 1 2
3 4। अगर ए बी छोटा है, ये ट्राइंगल में अगर ए बी छोटा है, इसके सामने कौन सा एंगल है? व्हाट इज ऑपोजिट टू ए बी? ए बी के सामने एंगल 2 है, तो कहना है से एंगल 2 इज स्मॉलेस्ट, तो इट इज लेस देन। अब ये डायगनली कनेक्ट करना है, ओके इसको भूल जाओ। एंगल 2 के सामने ये कौन सा? ये एंगल 1। ओके ये भी लिख सकते हो एंगल 2 लेस देन एंगल बी, बट हमें ये डायगोनल कनेक्ट करना है इसलिए एंगल 1 लिखेंगे। सो एंगल 2 किससे कम होगा? एंगल 1 से, क्योंकि ए बी इज द स्मॉलेस्ट। इट मीन्स एंगल 2 इज लेस देन बोथ द एंगल्स, इससे भी और इससे भी, पर हमें डायगोनल चाहिए इसलिए एंगल 2 इज लेस देन 1। सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? बड़ा वाला ट्राइंगल ए सी डी। अब ए सी डी में क्या मालूम है? सी डी इज लार्जेस्ट, सी डी लार्जेस्ट है, सी डी सबसे बड़ा है। सी डी के सामने कौन सा एंगल है? सी डी के सामने, अगर ये ट्राइंगल में सी डी के सामने कौन सा एंगल है? सी डी के सामने एंगल 4। तो एंगल 4 क्या है? लार्जेस्ट, तो मोर देन इसके सामने एंगल 3, एंगल 3। ओके यहाँ पे लेस है, यहाँ पे मोर है, तो इसको उल्टा लिख दो। एंगल 3 इज लेस देन एंगल 4, मीनिंग सेम हो। एंगल 4 मोर देन एंगल 3, यहाँ पे भी एंगल 4 मोर देन एंगल 3, मीनिंग सेम ही है, राइट। अभी इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, ये भी लेस है, ये भी लेस है, दोनों को ऐड करो। 2 + 3, 2 + 3 लेस देन 1 + 4, 1 + 4। व्हाट इज 2 + 3? चेक, 2 और 3 को ऐड करो क्या हो जाएगा? एंगल सी लेस देन, और 1 और 4 को ऐड करो क्या हो जाएगा? एंगल ए। सो फर्स्ट पार्ट वी गॉट एंगल ए इज मोर देन एंगल सी, सी एंगल ए इज मोर देन एंगल सी। अभी भी डाउट है, कोई इश्यू नहीं, नेक्स्ट पार्ट इज सेम टाइप। सो लेट अस डिस्कस द सेकंड पार्ट। अभी भी डाउट है, चेक करो, सेम मेथड से सेम लॉजिक लगाएंगे। अभी हमें सेकंड पार्ट में क्या चाहिए? एंगल बी इज मोर देन एंगल डी। एंगल बी और डी की बात करो तो बी डी को ज्वाइन कर दो। अभी कौन से दो ट्राइंगल दिख रहे हैं? एक दिख रहा है ए बी डी, तो पहले ए बी डी लिखते हैं। ए बी डी में क्या मालूम है? ए बी इज स्मॉलेस्ट। ओके नाम फिर दे दो, लेट्स से 5 6 7 8, ऑलरेडी 1 2 3 4 दे दिया था नाम। 5 6 7 8। ओके ए बी के सामने कौन सा एंगल है? अगर ये ट्राइंगल ले रहा हूं, ए बी के सामने कौन सा एंगल है? 8, लेस है तो लेस देन इसके सामने 5। सिमिलरली नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा है? डी बी सी। डी बी सी में क्या दिया हुआ है हमें? डी बी सी में क्या दिया हुआ है? सी डी इज लार्जेस्ट, सी डी इज लार्जेस्ट। सी डी अगर बड़ा, उसके सामने कौन सा एंगल है? सी डी के सामने कौन सा है? ये ट्राइंगल में सी डी के सामने कौन सा है? एंगल 6, मोर देन, लार्जेस्टली मोर देन 6 के सामने 7। तो आगे यहाँ पे लेस, यहाँ पे मोर है, तो इसको उल्टा लिख दो। एंगल 7 इज लेस देन एंगल 6, मीनिंग सेम ही होगा। एंगल 6 मोर देन, यहाँ पे भी एंगल 6 मोर है, राइट। एडिंग दिस 3 and 4, एडिंग 3 and 4 तो क्या होगा? 8 + एंगल 7 इज लेस देन एंगल 5 + एंगल 6। व्हाट इज 8 + 7? 8 + 7 क्या होगा? एंगल डी, एंड 5 + 6 विल बी एंगल बी। दैट्स इज आंसर। ये पूछा ना, एंगल बी मोर देन एंगल डी। सिंपल, ऑलराइट। सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। Now fifth question is again the diagram is given. P Q R, यहाँ पे P S दिया हुआ है, इसका नाम दे दो 1 2 दे दो, ठीक है। ये सब दिया, अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन P R is more than P Q to prove पी आर इज मोर देन पी क्यू दिया है, टू प्रूफ में पूछा है पी एस आर इज मोर देन पी एस क्यू। ओके, नाउ दिस इज यूर टू प्रूफ, दिस इज द डायग्राम दिया और ये पूछा है। सबसे पहले इजी करने के लिए सबके नंबर्स नाम दे दो। 1 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इजी करने के लिए ये लिख दो। पी आर मोर देन पी क्यू का मतलब क्या होता है? पी आर पी क्यू से ज्यादा है, मतलब बड़े ट्राइंगल में है। पी आर के सामने कौन सा एंगल है? 5 नहीं लिखोगे, क्योंकि पी आर और पी क्यू की बात कर रहे हैं तो पूरा ट्राइंगल आ रहा है। तो पी आर के सामने क्या है? 4। पी आर के सामने 4। क्यों 5 नहीं लिखा? क्योंकि पी आर और पी क्यू की बात कर रहे हैं, तो इसलिए पी आर के सामने 4 आएगा और पी क्यू के सामने 6 आएगा। ये थियरम से यहाँ लिख देना स्टेटमेंट। अब पी एस आर कौन सा एंगल है?
PSR, which angle? PSR is angle 3 more than PSQ. कौन सा है? PSQ. PSR था PSR तो 5 था. PSR क्या है? PSR 5 है और PSQ 3 था. ओके, ये प्रूफ करना है. एंगल 5 मोर देन एंगल 3. इससे थोड़ा इजी रहेगा, बाकी ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट जैसे दिया हुआ है नेमिंग्स. नाउ इफ यू नो दैट देयर आर टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल PSQ, कैन आई से ट्राइंगल PSQ इन तीनों का प्लस 180 होगा. 1 + 3 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, सिमिलरली इन ट्राइंगल PSR 2 + 5 + 6 is equal to 180 degree. Okay. Now can I say this both are 180 degree? They are equal. 1 + 3 + 4 is equal to 2 + 5 + 6. Okay. Now one more thing. It is given in question. They are bisector. 1 and 2 are equal. लिखने भूल गया. Angle 1 and angle 2 are equal. It is given in question. It is given PS bisect QPR. PS बाइसेक QPR, मतलब QPR के दो हिस्से हो रहे हैं. दिस इज इक्वल. एंगल 1 एंगल 2 आर इक्वल. एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं. एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल. तो एंगल 1 इज एंगल 2 + 3 + 4. एंगल 1 की जगह 2 लिखा, यहाँ पे 2 को एज इट इज रहने दिया. तो 2 and 2 विल गेट कट. ओके, नाउ 3 + 4 and 5 + 6. अभी मुझे क्या दिया है? और 4 इज मोर देन एंगल 6. 4 क्या है? मोर है. 4 मोर देन एंगल 6. एंगल 6 क्या है? लेस. सर्कल कर दो. ये मोर है तो ये क्या होगा? लेस होगा ये. और ये लेस है तो ये मोर होगा. तो एंगल 3 क्या है? लेस देन एंगल 5. यही पूछा है, चेक कर लो. एंगल 5 मतलब यही चीज PSR. क्वेश्चन में से कभी कॉपी कर लो. PSQ इज लेस देन PSR. हमने उल्टा प्रूफ किया पर वही मीनिंग है. PSR मोर देन PSQ. सिंपल. So properties, only properties I'm using, nothing else. Here you can write the statement as the addition of 2 are equal, n by 4 and more than 6. 4 6 से ज़्यादा है. अगर ये ज़्यादा है 6 से तो obviously ये कम होगा बाजू वाले से. Logic. Okay. Now let's move the last question of this exercise. Question number 6. Show that the line segment drawn from a given point on it, so there's a perpendicular line. The perpendicular line segment is the shortest. Okay, so this is, for the example, this is a point P. Okay, A B P. Give any name. Point का नाम P दे, C भी दे सकते हो, जरूरी है, no problem, जरूरी नहीं है. Any name you can give. It says ये point का perpendicular distance shortest होगा. Perpendicular distance always shortest. That is asked. It means first thing is angle B 90 degree. We have to prove BP is less than AP. अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे खड़े हो, आप AB पहुँचना है, आप यहाँ खड़े हो, AB पे पहुँचना है, कौन सा सबसे नज़दीक रास्ता है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? दिस वन, राइट. दिस इज मोर लेंथी डिस्टेंस, राइट, लॉन्गर डिस्टेंस. सो ऑब्वियसली PB विल बी लेस देन AP. ये प्रूफ करना है. दो रास्ते हैं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी शॉर्टेस्ट. दैट इज आस्क्ड. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट. हाउ विल प्रूफ? सेम एज द फर्स्ट सम. नाउ वी नो दैट एंगल B इज 90 डिग्री. तो कैन आई से एंगल B इज मोर देन एंगल A एंड एंगल B इज मोर देन एंगल P. अगर ये B 90 है तो दोनों से बड़ा होगा, राइट. तो एंगल B के सामने कौन है? AP. A के सामने BP. एंगल B के सामने AP और P के सामने AB. व्हाट आई एम कंक्लूडिंग? AP इससे भी बड़ा है, AP इससे भी बड़ा है. इट मीन्स AP is obviously more than, therefore PP is less than AP. Therefore perpendicular distance. Question लिख देना. Okay. So I believe you understood the concept. Here you write the reason. If angle is less, angle is more, the opposite side is also more. That property is very, very helpful as you observe. In all sums we are using the same concept, right? All right. Thank you.